Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Excuse me, ma'am. हाँ जी फैज. Ma'am, yesterday Good in the morning, night ma'am. you sent the photos. What? Good afternoon, ma'am. Ma'am, yesterday night you sent some worksheets on group. हाँ जी, I had sent. Ma'am, was that the one which you did in yesterday's class or was they new? I don't know. I don't remember exactly. That is why I shared it. Okay, ma'am. रमशा वो वही वाली फोटो वो थी जो हम लोगों ने कल करी थी क्लास में. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. और गुड मॉर्निंग बेटा. ये सारी वही थी. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, bro. Were we able to do all the worksheets or some questions were left? बताओ बेटा. Ma'am, some questions. Morning, ma'am. समान. गुड मॉर्निंग बच्चे. हमें ये बताओ कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था. टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया. क्लास. Yes, ma'am. I am asking you that the worksheet that I shared yesterday in the class group, geography revision worksheet 2, chapter 2, was it done or not? No, ma'am. It was not done. Ma'am. Ma'am, we were doing question answers of 3 marks. हाँ वही उसी की बात कर रहे हैं हम. Yes, ma'am. Ma'am, we have done 3 question answers. ओके. तो एक काम करो, वो वर्कशीट तो हमने आपसे शेयर कर ही ली है, तो वो आप हमें बाद में करके दिखाइएगा. अभी हम दूसरी वाली वर्कशीट शेयर कर रहे हैं. लेट अस डू दैट वर्कशीट. ओके. Yes, ma'am. चलिए. गिव मी टाइम. गुड मॉर्निंग. Ma'am, I am joining from laptop. Ma'am, please let me in. I am leaving from this device. Okay, I have taken you inside. Ma'am, we have done first and second worksheet and third half 5 question. Okay, I have shared that worksheet with you in the class group, so you will do it from there only. Right now I am sharing the third worksheet. We have completed worksheet first and second full. हाँ ठीक है. तो I am sharing the second worksheet with you, third worksheet with you. Okay. Yes. Okay. Can you see the screen, class? No. No, ma'am. ये क्या हो गया? Okay. अरे so sorry. शेयर का ऑप्शन दबाया नहीं. एक मिनट. Now I think you can see. Yes, Right? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए.
ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप कर लीजिए फटाफट से, देन वी विल डिस्कस, ओके। एंड एज यू फिनिश योर आंसर्स, फर्स्ट वाला आंसर खत्म करा उसको शेयर करो ग्रुप पे, दूसरा करोगे उसको शेयर करो, ठीक है। लेट मी सी दैट एवरीवन इज राइटिंग, क्योंकि कल सबने शेयर Good नहीं। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। Ma'am, please rename. जरूरी है? रुको, लेट मी चेंज। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, रुको 1 मिनट देखते हैं। Ma'am, screen is coming back. नहीं, इज द स्क्रीन कमिंग ब्लैंक? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, may I rejoin? यस बेटा, यू कैन। Tell me how much time you need to complete this these 5 questions in 15 minutes will be sufficient for you all? बेटा 15 मिनट सफिशिएंट होंगे? हम हो जाएंगे शायद से। हो जाएंगे ना, चलिए ठीक है, करिए फटाफट से। मैम ये चैप्टर 1 की वर्कशीट है। ये चैप्टर 1 की है, हाँ जी बेटा। मैम कितने मार्क्स के क्वेश्चंस मैम? 2 और 3? 3 मार्क्स के हैं ये सारे के सारे। ओके मैम। आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ये आपको 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है।
Is Chirag typing on the class group? Ma'am, बोलो बेटा. ma'am, we have to complete the answer in how many words? बेटा ये आपके 3 मार्क्स के हैं तो आप इनको कंप्लीट करोगे 50 to 60. 50 to 60 वर्ड्स. कल जितने दिए थे उतने में. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Sandeep. Ma'am, I have sent my first answer. Ma'am, मैंने उसमें 3 पॉइंट्स में आंसर भेजा है मैम. तो 3 मार्क्स के लिए वो भी तो सही रह सकता है. अभी देख लेते हैं. मैं पढ़ ले रही हूँ 2 मिनट दो मेरे को. ओके. ठीक है. फर्स्ट वाले पॉइंट को थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल दे दो उसकी. बता दो कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनका हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में जो है दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट और दे आर द डिपॉजिट्स आर गेटिंग ओवर. है ना अग्रिम? ओके मैम. मैम तो फिर मैम उसको अगर मैं 4th पॉइंट की तरह लिख दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर लो. ओके मैम.
Excuse me, ma'am. Can you tell what is question number 2 is saying? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 is asking you why does the pattern of net zone area vary from one state to another? net zone area पता है ना, कह रहा है उसका पैटर्न जो है एक जगह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलता क्यों है? Okay. एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बेटा। मैम मैंने 4th पॉइंट ग्रुप में भेजा था मैम, आप देख लीजिए वो सही है। चेक करने दो। Ma'am, I have also sent my answer. बेटा चिराग, आर यू देयर? Yes, ma'am. बेटा एग्जाम में आपको हैंड राइटिंग से करना है, टैबलेट थोड़ी मिलेंगे आपको टाइप करने के लिए एग्जाम में। प्लीज सेंड हैंड रिटन, आई डोंट वांट दिस टाइप्ड वन। राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रही हूँ बेटा मैं, तो कम से कम लिखना तो सीखो। अब एग्जाम में थोड़ी टाइप करोगे बैठ के, एग्जाम में टाइपिंग मिलेगी क्या बताओ? और ये ओम हैज आल्सो डन दिस। ओम, Yes, ma'am. ये आपकी राइटिंग तो नहीं है बेटा, ये आपने कट कॉपी पेस्ट मारा है। हाँ नहीं मैम, हाँ, आपने लिखा मैं नहीं आपको वीडियो बना के मैं आपको Excuse me, वीडियो बना के सेंड कर दूं? बेटा, ये तो वो है। मैम वीडियो बना के सेंड कर दूं आपको? Excuse me, ma'am. इज इट हैंड रिटन, यू टेल मी। मैम यस मैम, कैन आई सेंड वीडियो? तो जिसमें आपने लिखा है वो आप वो पेज भेजो मुझे, वैसे भेजो, इसको ऐसे मत भेजो आप। हाँ बोलो दिवांश, क्या कह रहे हो मैम आप? कैसे? मैम मैंने भेजा है मैम, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं मैम, आप चेक कर लीजिए एक बार। मैं चेक कर रही हूँ, एक एक पे जरा हैंडल करूँ मैं पहले। मैम इतना please सफिशिएंट है check, मैम, ma'am. या 3 मार्क्स के लिए और लिखना होता है? बेटा एक मिनट, ये ओम आपने अपना आंसर बट से क्यों शुरू करा है? वो स्पेस पर पहले से लिखा हुआ था मैम। हाँ मैम साइड में। नहीं, आपने लिखा है बट indiscriminate use of resources had led to many problems like this। बेटा ये पहली बात तो नोटबुक का पेज है ही नहीं, हम आपको पहले ही बता दें। Ma'am, this is like brainly. बेटा इतना इतना नेट को हमने एक्सप्लोर कर लिया है ना, इतनी चीजें एक्सप्लोर करी है ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कि आप हमें नहीं पढ़ा सकते हो इस चीज में। ये आपने हैंड रिटन नहीं लिखा है, आई एम श्योर, क्योंकि ये सेम, ये जो आपने राइटिंग भेजी है, ये सेम अभिषेक ने भी भेजी थी बेटा एग्जाम में, आपको पता है। मैम कैन आई मैम आई कैन राइट फुल आंसर देन सेंड वीडियो? बेटा वीडियो क्यों सेंड करोगे, आप जिस पे लिख रहे हो उस वो पेज भेज दो, वेरी सिंपल। ओके मैम, सेंडिंग। एक्सक्यूज मी मैम, बेटा एक मिनट, हाँ बोलो बोलो अग्रिम। मैम मैंने अपना 4th पॉइंट भेजा था मैम। बेटा वही मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा है, वो कहाँ है आपने? अच्छा रुको, ठीक है मिल गया बेटा, मैम आई हैव आंसर। मिल गया। एक्सट्रैक्शन हाँ ठीक है। वेस्टेज देखो मैम मेरे इसमें ना, इसमें अग्रिम आप इसमें ये चीज लिख सकते हो कि जो एक्सट्रैक्शन होती है, उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में सारे के सारे मिनरल्स को जो है यूज नहीं किया जाता है, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जाता है। तो ये भी एक रीजन है फॉर द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, फॉर द मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। ओके मैम। हाँ और बताओ कौन, देवांश आप कुछ कह रहे हो? हाँ मैम आप चेक कर लीजिए, मैंने भेज दिया मैम। बेटा देख रहे हो बच्चे, देख रहे हो, पेशेंस। Excuse me, ma'am. ये Ma'am, I have a doubt. आयुष सिंह, बोलो बेटा क्या डाउट है आपका बच्चा? Ma'am, like a country में मैम जो उसका मैम 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है मैम, उसकी वो चारों डायरेक्शंस के होता है। हाँ तो मैम इंडिया और मैम श्रीलंका, मैम इंडिया से श्रीलंका ज्यादा दूर तो नहीं है मैम, तो उसका जो एरिया है तो मैम वो इंडिया और उसका एरिया मैम ज्यादातर बराबर है, तो मैम कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता होगा कि वो ज्यादा वो हमारे एरिया से रिसोर्सेज ले रहा है? वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है उसमें बेटा,
है ना। भाई इंडिया की नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, आइलैंड नेबरिंग कंट्री है, तो ऐसा कुछ ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है। और अगर कुछ इस तरीके की चीज होती है तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉर्ट आउट करा जाता है। मैम अगर एक ऐसा कंट्री मैम ज्यादा पावरफुल है दूसरी कंट्री से और मैम वो ज्यादा रिसोर्सेज वहां से ले रहा है और मैम उसको नहीं लेने दे रहा, तो मैम ऐसे में क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, वो हमने कहा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वॉर। जिसमें कि वो उनके अपने खुद के कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसमें कि वो अलाउ कर देते हैं, ठीक है, कि आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो रिसोर्सेज को। Excuse me, ma'am. जी बेटा। Ma'am, could you tell net zone area again? नेट जोन एरिया, चलो मैं मेरे बताने से पहले लेट मी आस्क अदर्स, एनीबॉडी इन द क्लास हु वुड लाइक टू टेल दिस नेट जोन एरिया, व्हाट इज मेंट बाय नेट जोन एरिया? आयुष? Ma'am, can I tell? यस ओम, बताओ बताओ। Ma'am, can I tell? Ma'am, Chalo, there are And the total area sown with crops. Yes, ma'am. Ma'am, which include the area sown more than once in a agriculture year and the net sown area, ma'am. बेटा नेट जोन एरिया मतलब होता है वो लैंड, वो एरिया जिसको कि हम, जिसमें कि हम कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। टोटल मतलब मैम पूरी कंट्री का? नहीं नहीं, मैम लेकिन सेकंड क्वेश्चन में फैक्टर्स लिखने हैं। किसमें किसमें बेटा? सेकंड वाले में हमें ये थोड़ा लिखना है कि नेट जोन एरिया क्या होता है। उसको यही नहीं पता है नेट जोन एरिया क्या होता है बेटा। नहीं मैम, मैं ये Yes, कह रहा हूँ ma'am. सेकंड वाला। समझ नहीं आ रहा है मैम, सेकंड क्वेश्चन में बताना क्या है मैम? वो ये कह रहा है मैम, कि मतलब फैक्टर्स net- लिखने हैं। एक मिनट, वो कह रहा है कि जो नेट जोन एरिया का जो पैटर्न है वो स्टेट टू स्टेट वेरी क्यों करता है, सब जगह एक जैसा क्यों नहीं होता है। भाई यूपी में जिस हिसाब से पैदावार होती है तो जो है उत्तराखंड में उस हिसाब से क्यों नहीं होती है, या महाराष्ट्र में उस हिसाब से क्यों नहीं होती है, या आपका जो है गुजरात में उस तरह से क्यों नहीं होती है, या राजस्थान में उस तरह से क्यों नहीं होती है। Ma'am, due to terms and conditions of weather and मैम other क्योंकि हर जगह climate condition conditions अलग अलग बस होती हैं। बस ये and पूरा economic conditions. हाँ बिल्कुल, ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा, क्योंकि देखो इंडिया पूरे हमारे कंट्री में जो फिजियोग्राफिक डिविजन है वो सब एक जैसे है ही नहीं, पूरे कंट्री का लैंड एरिया एक जैसा है ही नहीं। कहीं पे जो है आपके रेतीला मैदान है, कहीं पे आपका जो है पथरीली जमीन है, कहीं पे आपकी जो है इतना ज्यादा पानी है कि जो है वो है ही नहीं, मतलब इतनी ज्यादा बारिश होती है कि जो है वहां पे खेती आप कर ही नहीं पाओगे। तो नेट जोन एरिया में वेरिएशन, पैटर्न में वेरिएशन सिर्फ इसलिए क्योंकि थ्रू आउट दी कंट्री जो है एक जैसा एरिया प्रिवेल ही नहीं करता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो गुजरात का, राजस्थान का, अपना अरुणाचल, असम, अरुणाचल का, ठीक है। उसके बाद आप जो है साउथ का एग्जाम्पल, डेक्कन प्लेट्यू रीजन का एग्जाम्पल दे सकते हो, जहाँ पे लैंड जो है इट इज गुड फॉर माइनिंग बट इट इज नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। तो नेट्स ऑन पैटर्न जो है वहां का डिफरेंट होगा। ये जो क्वेश्चन हमने उठा के दिया है ये बुक में से ही दिया है, बुक में लिखा हुआ है, ये चीज पता है आपको, ये सेम चीज बुक में लिखी हुई है, उसी से हमने क्वेश्चन बना दिया है एक आपके लिए। जिसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा है पूरा। हाँ बस उसी में क्वेश्चन है, उसी में आंसर है। मैम ऑन विच पेज नंबर? अच्छा अब हम ये भी बता देंगे बेटा, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर पेज नंबर 5। Ma'am, and question number 4, we have to tell that how we can control the land degradation problem. हाँ, suggest some measures to solve the problem of land degradation in India. बेटा पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा आपको इसका आंसर, सेकंड वाले का। Ma'am, on which page number? पेज नंबर 6। Ma'am, we can also write, ma'am, that by human activities, ma'am, overgrazing, mining. वो सब आप जो आप बताना चाहते हो वो आप लिखो, वो और उसको डिटेलिंग चाहिए हमें, शॉर्ट में नहीं चाहिए, 2-3 वर्ड्स नहीं चाहिए, प्रॉपर आप डिटेलिंग दोगे। Okay, ma'am. हाँ, got it, Yes, bro? ma'am. Got this answer? Second one. Excuse me, ma'am.
अग्रिम बोलो बेटा। Ma'am, I have sent my second answer. हाँ, चेकिंग बेटा। मैम आप मेरा मेरा तो चेक कर दीजिए मैम, फर्स्ट वाला में। बोला तो Yes, दीवान ma'am. Mine too, ma'am. बेटा, दीवान मैंने पढ़ के आपने उसी मैंने बोला ठीक है, एकदम सही है। मैम इतना सफिशिएंट है 3 मार्क्स के लिए मैम? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस एक लास्ट पॉइंट पढ़ने दो। ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट है। भले अक्षदा आपके भी करेक्ट है बेटा। सॉरी, ठीक है, सॉरी आंसर करेक्ट है। ठीक है निखिल। अग्रिम इन पॉइंट, गिव दिस आंसर इन पॉइंट। आंसर शुड बी इन पॉइंट, और थोड़ा कुछ और पॉइंट्स ऐड करे जा सकते हैं इसमें। अग्रिम, Yes, ma'am. आपके सेकंड आंसर जो है उसमें पॉइंट्स ऐड करो आप। जी okay, ma'am. ध्रुव, आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से फिजियोग्राफिक डिविजन्स स्टेट्स की अलग अलग है। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि अरुणाचल में जो है अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, बहुत ज्यादा रॉकी सरफेसेस है, पानी है, आप वहां पे जो है इजी नहीं है कल्टीवेशन करना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने बुक का एज इट इज जो आपने लिख दिया है, जिसे बुक में आपको देखो पूरा पूरा उन्होंने स्पेसिफाई करा हुआ है कि किन स्टेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ध्रुव, कैन यू हियर मी? अच्छा, शोएब इज आल्सो देयर। बेटा शोएब, शोएब मैम बेटा, ये इतने शॉर्टकट लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलेंगी ये। इसको एक्सप्लेन तो करोगे ना, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, हैव एंड हैव नॉट्स इन सोसाइटी, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, डिवाइड्स इनटू रिच एंड पुअर। इसको एक्सप्लेन करोगे कि नहीं करोगे? यस मैम। ठीक है, now it is fine, Chirag. Faiz has not rejoined. Ma'am, check my answers. Ma'am, I have sent you the board first and second. हाँ धनंजय, पढ़ ही रहे बेटा आपके आंसर्स। अब ओम, जो आपने पहला आंसर भेजा था, तो अभी आपने जो आंसर भेजा है लिख के, दोनों की राइटिंग में बहुत वेरिएशन है। ओम शर्मा, वेल डन श्रेया। धनंजय, प्रॉपर्टी कहाँ से आ जाएगी बेटा? प्रॉपर्टी नहीं आएगी, प्रॉपर्टी वाला पॉइंट रेलेवेंट नहीं है इसमें।
Bhumika Patel is also there in the class. Bhumika, are you there? Ma'am, I have sent the rest three answers also. Kindly check. Checking. अक्षदा, ये जो आपने मेजर्स दिए इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी तो करेंगे ना आप बाद में? Yes, ma'am. Perfect answer. फॉरेस्ट सॉइल वाला आंसर कंप्लीट नहीं लग रहा है बेटा. Yes, ma'am. फॉरेस्ट सॉइल वाला जो आंसर है वो थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है मेरे को. Ma'am, I can elaborate it more. हाँ. जैसे Ma'am, the स्टैंड पे screen stop sharing. हाँ बेटे, अरे एक मिनट रुको. ऐसा है ना, जो पेज 10 पे जो आपका फॉरेस्ट सॉइल्स लिखा हुआ है, the soil's texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loomy and silty in the valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. तो आपने यही तो लिखा है पूरा का पूरा कि थोड़ा सा काट दिया है इसमें, आपने इसको तो कट शॉर्ट कर दिया है, तो आपको पूरा ये फर्टाइल फैंस एंड फर्टाइल तक लिखना पड़ेगा. मैम इसमें थर्ड. मैम प्लीज सी माय आंसर. हाँ बेटा. मैम थर्ड बार में हाँ बोलो बोलो. मैम द स्टेटमेंट मैम इसकी मैंने लिखी है LI, क्या लिखा मैम ये? Highlighting the environmental values of forests. मैम लाइटनिंग मींस मैम हाईलाइटिंग, कम होना. हाईलाइटिंग हाईलाइट मतलब उसको बताना, environmental values को बताओ क्या है. हाईलाइट करते हैं, जैसे हम मेन हेडिंग जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको डबल बार लिख देते हैं, उसके ऊपर जो है डबल राइटिंग कर देते हैं, तो हाईलाइट कर देते हैं. तो कह रहा है कि हाईलाइट करो एनवायरमेंटल वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट, क्यों होने चाहिए, ज्यादा क्या फायदा होता है उसका. गॉट इट? Excuse me, ma'am. बेटा अग्रिम. मैम प्लीज सी माय आंसर. Ma'am, I have sent my answer number 2 in points again. So let me see. There is something. मैम सेम. Ma'am, I've sent my third answer. Yes, Shelly. मैम प्लीज सी माय सेकंड आंसर. Shelly, if you try to write your answers in points, that will be better. Okay, ma'am. देखो चिराग, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है और आप जो टाइपिंग करके अपनी राइटिंग खराब कर रहे थे. वेरी गुड. अगर इस वाले आंसर में बेटा पर्टिकुलरली आपको कंसंट्रेट करना है ये बताते हुए कि कैसे हमारे कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री फिजियोग्राफिक डिविजन्स आर डिफरेंट. तो जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं तो वहाँ के जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो भी डिफरेंट है, तो इस वजह से जो नेट जोन एरिया है वो वेरी करता है, पैटर्न जो है उसका. ठीक है, जो आपका मैं बताऊं अक्षदा का पॉइंट, आई थिंक श्रेया वाला जो आंसर है उसको आप एक बार देखो. अक्षदा वाला भी और श्रेया वाला आंसर और अक्षदा वाला आंसर दोनों एकदम करेक्ट है. ठीक है, और किसका पढ़ा? मैम प्लीज चेक माइन आल्सो. मले 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 मले. ये आपका कौन सा आंसर है मले? फार्मर्स एंड बैकवर्ड. ठीक है, दिस इज सेकंड वन. अभी एक मिनट देख रहे हैं.
ठीक है, ये गलत है आंसर मले। नेट जोन एरिया का पैटर्न क्यों डिफरेंट है वो बताना है आपको। पेज नंबर 6 पे है, आपने जो आंसर लिखा है वो आप लिख रहे हो, वो नहीं मैम हो। मेरा चेक किया मैम, आंसर नंबर 2 में मैंने भेजा था मैम। देवांश आपका, एक मिनट, इसमें आप, ये ठीक है बट इसमें ना बेटा आप, जैसे अग्रिम को भी हमने यही बात बोली, इसमें आप कुछ फैक्ट्स डाल दीजिए। जैसे फैक्ट्स इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे जो है अरुणाचल और मिजोरम, मणिपुर और निकोबार आइलैंड्स जो है वहां पे जो सॉइल है इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, इसलिए वहां का नेट जोन पैटर्न डिफरेंट होगा। तो ये चीज आप स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है। ओके मैम, ओके। तो मैम जैसे कि मैम मैंने अपने आंसर में वो देवांश का आंसर देख के मैम ये पंजाब एंड हरियाणा वाला पॉइंट मैंने ऐड करा था। वो ठीक है, वो ठीक है, पर आप फिर उन टोपोग्राफी के बारे में भी तो बताओगे जहाँ पे जो है सुटेबल नहीं है कंडीशंस। ओके मैम। मैम मैम इट इज लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैम ये पॉइंट हो सकता है मैम। हाँ बिल्कुल, मैंने तभी तो आपको पेज नंबर बताया कि इस पेज नंबर से हमने दिया है क्वेश्चन, हमने यहीं से दिया मैम है। प्लीज सी माय सेकंड आंसर। सबकी आवाज एक जैसी लग रही है। ये आनंद बोल रहे हैं कि आनंद बोल रहे हैं ना? मैम आनंद, यस। चलो मैम अटेंडेंस ले लीजिए मैम, टाइम पूरा हो गया है। अरे अच्छा हुआ याद दिला दिया, एक मिनट रुको फिर। चलिए, विशेष इज देयर इन द क्लास? यस मैम। शैली इज देयर? रमशा? रमशा? Yes, ma'am. शिखा? हसीन? हसीन आर यू देयर? नहीं है, ये देखो चला। यस मैम। आंसर मैम भेज। मैम धनंजय एक्चुअली मैं बोलो। मैम आपको थोड़ी देर में मैं सारे आंसर एक साथ ही भेज दूंगा। ठीक है, चलो आई एम वेटिंग।